آج آپ دیکھنے والے ہو ڈورا اینڈ دا لاسٹ سٹی آف گولڈ، جو کہ ایک ایڈونچر اینڈ کامیڈی مووی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو دیکھنے میں مزہ آئے گا، تو چلیں بنا ٹائم ویسٹ کیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک بچی ڈورا کو دکھانے سے، جو کہ اپنے دوست ڈیاگو کے ساتھ جنگل میں کھیل رہی تھی۔ ڈورا کا ایک اور دوست بھی ہے جو کہ ایک منکی ہے، جو ہمیشہ ڈورا کے ساتھ رہتا ہے۔ دوست اور ڈورا کے موم اینڈ ڈیڈ ایکسپلورر ہیں، یعنی کہ وہ قیمتی اور پرانی چیزوں کی کھوج لگاتے ہیں۔ تو ڈنر کے ٹائم وہ اپنی بیٹی یعنی کہ ڈورا کو پیرا پاٹا نامی ایک جگہ کی سٹوری سناتے ہیں، جو کہ سونے سے بھرا ایک شہر ہے، جسے صدیوں سے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تک کسی کو بھی نہیں ملا۔ تو ڈورا کے موم ڈیڈ بھی اس جنگل میں اس شہر کو ڈھونڈنے آئے ہوئے ہیں۔ تو ڈورا تو اپنے موم ڈیڈ کے ساتھ اسی جنگل میں رہے گی، لیکن اس کے دوست ڈیاگو کی موم کو نئی جاب مل گئی تھی، تو اسی لیے وہ اپنی موم کے ساتھ شہر میں شفٹ ہو رہا تھا۔ جس کے بعد 10 سال کا وقت گزرتا ہے۔ ڈورا اب بڑی ہو چکی تھی اور اپنے موم ڈیڈ کی طرح وہ بھی ایک ایکسپلورر بن چکی ہے، اور بالکل انہی کی طرح وہ بھی پیراپاٹا کی تلاش میں ہے۔ اسی تلاش کے دوران اسے ایک چمکتا ہوا گولڈن منکی دکھائی دیتا ہے، جسے لینے کے چکر میں وہ ایک گڑھے کے اندر بھی گر جاتی ہے۔ لیکن وہ اس اسٹیچو کو پا کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی، لیکن شاید اس کے پیرنٹس نہیں، کیونکہ انہیں اس اسٹیچو اور اس کے اوپر بنے میپ کے بارے میں پہلے سے ہی علم تھا۔ تو ڈورا کے ڈیڈ اسے کہتے ہیں، دیکھو پیراپیٹا شہر پیرو میں ہے، میں اور تمہاری موم پیراپیٹا کی کھوج کے لیے وہاں جا رہے ہیں، لیکن تم یہی رہو گی کیونکہ وہاں کافی خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تم ڈیاگو کے گھر رہو گی۔ یاد ہے نا آپ کو ڈیاگو؟ ارے وہی جو ڈورا کا بچپن کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ لیکن ڈورا تو اداس ہو جاتی ہے، وہ تو بچپن سے ہی اسی جنگل میں رہ رہی تھی اور جنگل کے سارے جانور اس کے دوست تھے۔ اس نے ابھی بھی ایک خطرناک سانپ کو اپنے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ اس کی موم کہتی ہیں، دیکھو بیٹا، شہر میں ایسی حرکتیں مت کرنا پلیز، ایسا نہ ہو کہ سب تم سے ڈریں اور کوئی تمہارا دوست نہ بنے۔ ڈورا سمجھ آتی ہے اور پھر کچھ دن بعد وہ شہر میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر انہیں ڈیاگو کی فیملی ریسیو کرنے آئی ہوئی تھی، اور ڈورا کا ایڈمیشن ڈیاگو کے ہی کالج میں ہوا تھا۔ اب جب وہ کالج آتی ہے تو چیکنگ کے دوران اس کا بیگ پکڑا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بیگ میں کافی عجیب چیزیں تھی۔ ڈورا کہتی ہے، ارے آپ کو کیا پتا، یہ سامان ایکسپلوررز کے کام آتا ہے اور میں ایکسپلورر ہوں۔ ڈیاگو جانتا تھا کہ اتنے سال جنگل میں گزارنے کے بعد وہ شہر کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو نہیں سمجھ پا رہی، اسی لیے وہ بڑے پیار سے اسے یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن سمجھاتا ہے۔ لیکن ڈورا کہاں سمجھنے والی تھی، تو آخر ایک دن اس کی ان جنگلی حرکتوں سے تنگ آ کر وہ اسے ڈانٹ دیتا ہے، اور اس سب سے ڈورا بہت اداس ہو جاتی ہے۔ یہاں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ڈورا اپنے موم ڈیڈ کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھی۔ اب ڈورا اپنی کالج ٹرپ میں ایک میوزیم پہنچتی ہے، جہاں ٹیچر کی طرف سے ان کی پوری کلاس کو ایک ٹاسک ملتا ہے، جسے 4 لوگوں نے مل کر پورا کرنا تھا۔ ڈیاگو کے ساتھ 2 اور لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور انہیں ٹاسک ملتا ہے کہ کوئی بہت ہی پرانی اور قیمتی چیز ڈھونڈ کر لانی ہے۔ تو ڈورا اپنے ارد گرد دیکھتی ہے، جہاں اسے اینشینٹ ایجپٹ کا ایک چیمبر دکھائی دیتا ہے جو بند تھا۔ تو ایک لڑکی اس سے کہتی ہے کہ تم اس چیمبر کے ذریعے اپنے ٹاسک کو بڑی ہی آسانی سے پورا کر سکتی ہو اور میں تمہاری مدد بھی کر سکتی ہوں۔ اور یہ کہتے ہی وہ بڑی خاموشی سے ایک خفیہ دروازہ کھول کر وہاں سے چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد ڈورا اور اس کا گروپ اس چیمبر کے اندر آ جاتا ہے، لیکن سیکیورٹی گارڈز انہیں دیکھ لیتی ہیں۔ ڈورا کے ساتھی تو وہاں رکھے ہوئے باکس کے اندر چھپ جاتی ہیں، لیکن بیچاری ڈورا پکڑی جاتی ہے۔ تبھی وہاں ایک اور گارڈ آ کر ڈورا کو اس کے نام سے پکارتا ہے، جو کہ ڈورا کے لیے کافی حیران کن بات تھی۔ پھر وہاں وہ لڑکی بھی آ جاتی ہے جس نے اس چیمبر کا دروازہ کھولا تھا۔ ڈورا سمجھ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، یہ سب تو ایک چال تھی اسے پکڑنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ ڈورا کچھ کر پاتی، یہ لوگ اسے اسی باکس میں دھکا دے دیتے ہیں جس میں اس کے ساتھی بھی تھے۔ باکس کے اندر سلیپنگ گیس ڈالنے کی وجہ سے یہ سبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور ہوش آنے پر وہ لوگ ایک جہاز میں تھے۔ ڈورا ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ تبھی اچانک ایک آدمی ان کے باکس کو کھولتا ہے۔ دراصل یہ آدمی ان کی مدد کے لیے ہی آیا تھا، جس کا نام تھا الیگزینڈرو، اور وہ ڈورا کے موم ڈیڈ کا دوست تھا۔ ایکچولی ڈورا کے موم ڈیڈ کی جان خطرے میں تھی۔ یہ آدمی ڈورا سے کہتا ہے، تمہارے موم ڈیڈ کی جان خطرے میں ہے بیٹا، اسی لیے میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، اور تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی میں اس باکس تک پہنچا۔ وہ ان سب کو یہ بتانے کے بعد انہیں یہاں سے بچا کر نکال ہی رہا تھا کہ ڈورا کے کڈنیپرز کی نظر ان سب پر پڑ جاتی ہے۔ وہ بچنے کے لیے اور تیزی سے بھاگتے ہیں، تبھی وہ کڈنیپر اپنی پیٹ فوکس سے اس میپ کو لانے کا حکم دیتا ہے۔ وہ فوکس اتنی تیز تھی کہ اس نے چند ہی منٹوں میں ڈورا سے اس کا بیگ چرا کر اس کے اندر سے پیرا پاٹا کا میپ بھی
भी निकाल लिया था। डोरा के दोस्त उससे मैप वापस लेने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं और वो मैप किडनैपर्स के हाथ लग जाता है, जिन्होंने डोरा को खजाने तक पहुंचने के लिए किडनैप किया था। अब अलेक्जेंड्रो इन बच्चों को यहाँ से दूर एक महफूज जंगल में ले आता है और फिर डोरा को एक डायरी देकर कहता है कि मैं पैरापेटा की खोज में उनकी मदद कर रहा था कि तभी अचानक मेरा उनसे कांटेक्ट खत्म हो गया। मैं समझ गया कि वो खतरे में है, इसीलिए मैं तुम तक पहुंचा कि शायद तुम अपने डैड की डायरी को समझते हुए उन तक पहुंच जाओ और उन्हें बचा लो। तो डोरा इस डायरी को पढ़ना शुरू करती है। तभी अलेक्जेंड्रो उन्हें बताता है कि हमेशा ही कुछ लोग पैरापेटा शहर की हिफाजत करते हैं और उस शहर के खजाने की खोज लगाने में बहुत लोगों की जान भी गई है। इन्हीं बातों के दौरान डोरा को एक दरख्त पर एक लाल निशान नजर आता है। डोरा पहचान लेती है कि इसे मेरे डैड ने ही बनाया है और वो यहीं कहीं करीब ही हैं। फिर वो लोग उसी दरख्त की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें डोरा के मॉम डैड का कैंप भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बिखरा हुआ था। डोरा समझ जाती है कि किसी ने पैरापेटा तक पहुंचने के लिए उसके मॉम डैड को किडनैप कर लिया है और इसी कैंप में डोरा को अपना पेट मंकी भी मिल जाता है। अब ये डोरा के मॉम डैड को बचाने की प्लानिंग कर रहे थे, तभी कोई तीर से इन पर हमला करता है, लेकिन ये सब बच जाते हैं और फिर भागकर एक नदी के करीब आ जाते हैं, जहां उन्हें एक और कैंप दिखाई देता है और ये उन्हीं किडनैपर्स का कैंप था जिन्होंने डोरा को किडनैप करके उससे पैरापेटा का मैप लिया था। लेकिन अब सवाल ये था कि अगर उनके जंगल में डोरा के मॉम डैड नहीं थे, आखिर वो कहाँ गए? डोरा दोबारा से अपने डैड की डायरी पढ़ती है और फिर बताती है कि शायद डैड ने अपना रास्ता बदल लिया था, जिसकी वजह से वो इन लोगों से बच गए। डोरा के डैड की डायरी की मदद से ये जंगल में बने एक पुराने ओपरा हाउस में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक बुरी औरत मिलती है जो पैरापेटा की बातें करते हुए उनसे कहती है कि जो भी पैरापेटा को ढूंढने की कोशिश करेगा उसके ऊपर एक कर्स यानी कि श्राप आ जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर कोई वहां जाना चाहता है तो उसे रास्ता बता सकती है और इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता भी ये औरत जानती थी। अब डोरा तो पहले ही पैरापेटा की तरफ जाना चाहती थी क्योंकि उसे अपने मॉम डैड को ढूंढना था। डियागो भी उसका साथ देने का फैसला करता है, लेकिन उसके बाकी दोनों दोस्त जंगल से बाहर जाने का फैसला करते हैं। वो इन सबको इनके पूछे हुए रास्ते बता देती है। डोरा और डियागो तो पैरापेटा की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन उनके बाकी दो दोस्त बाहर जाते हुए समझ आते हैं कि ये औरत पैरापेटा की गार्ड है और उसने डोरा के साथियों को गलत रास्ता बताया है, जिसकी वजह से वो मुसीबत में भी फंस सकते हैं और उनका शक बिल्कुल दुरुस्त था। डोरा और उसके साथी उस रास्ते से गुजरते हुए वहां मौजूद जहरीले फूलों से निकलने वाली गैस की वजह से बेहोश हो जाते हैं और जब उन्हें होश आता है तो उनके सामने उनके दोस्त थे जिन्होंने सही वक्त पर पहुंचकर उनकी जान बचा ली थी। और अब डोरा, जो कि खुद एक एक्सप्लोरर थी, अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती है। वो सब एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। डोरा कहती है, जहाँ तक मुझे लगता है पैरापेटा की एंट्रेंस को यही कहीं होना चाहिए, और उसके ऐसा कहते ही जमीन फट जाती है और सभी लोग जमीन के नीचे आ गिरते हैं। ये काफी अजीब जगह थी। इसके छत पर सितारे बने हुए थे और वहाँ पर 3 लीवर भी थे। इनमें से एक लीवर को गलती से उसका साथी दबा देता है, जिससे वहाँ पर पानी भरना शुरू हो जाता है। उस पानी को रोकने के लिए बाकी 2 लीवर भी घुमा देते हैं और अब ये गार्ड चारों तरफ से पानी से भर जाता है। ये सब तकरीबन डूबने वाले थे कि तभी डोरा का साथी पानी के नीचे जाकर एक व्हील को घुमाती है, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में छत पर सितारे बने हुए थे। और ऐसा करने से वहाँ उनके लिए एक नया रास्ता खुल जाता है और ये सब एक नई दुनिया में आ जाती हैं। डोरा को लगता है कि अब वो पैरापेटा के बहुत ही करीब पहुंच चुकी है। उसे यहाँ पर अपने मॉम डैड भी मिलते हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक थे। डोरा बताती है कि हमें भी कुछ ऐसे लोगों ने किडनैप कर लिया था जो पैरापेटा तक पहुँचना चाहते थे और मुझे भी आपके दोस्त अलेक्जेंड्रो ने ही बचाया। लेकिन ये क्या, वो लोग तो अलेक्जेंड्रो को जानते ही नहीं थे और इससे पहले वो लोग कुछ कर पाते, अलेक्जेंड्रो किसी को वॉकी टॉकी के जरिए यहाँ बुलवाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में अलेक्जेंड्रो भी उन्हीं लोगों का साथी है जिन्होंने डोरा को किडनैप किया था और वो डोरा के जरिए डोरा के मॉम डैड तक पहुँचना चाहते थे ताकि डोरा के मॉम डैड उन्हें पैरापेटा के खजाने तक पहुँचा दे। वो डोरा के डैड को धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे खजाने तक ना पहुँचाया तो मैं डोरा को मार डालूंगा, और उन्हें मजबूरी में अलेक्जेंड्रो की बात मानना पड़ती है और फिर वो एक केव से होते हुए पैरापेटा की नई दुनिया में आ गई। डोरा और उसके दूसरे साथियों को तो उन्होंने बंदी बनाकर रखा हुआ था, जिनकी मदद डोरा का मंकी दोस्त करता है और वो बचकर निकल जाते हैं। और अब उनका मिशन था डोरा के मॉम डैड को अलेक्जेंड्रो से बचाना। डोरा देखती है कि अलेक्जेंड्रो ने
एक बहुत ही बड़ा कैंप लगा रखा है और उस कैंप का दरवाजा बहुत बड़ा है और उस दरवाजे की हिफाजत अलेक्जेंड्रो का एक आदमी और एक फॉक्स कर रहा था। उनको यहाँ से हटाना जरूरी था, इसलिए डोरा वहाँ एक गोल्डन कलर का फ्रॉक छोड़ देती है। वो बचपन से इसी जंगल में रही थी तो उसे हर जानवर के बारे में पता था। जो कोई भी इस फ्रॉक को छू लेता वो बेहोश हो जाता और अलेक्जेंड्रो का आदमी लालच में आकर कि ये सोने का फ्रॉक है उसे छू लेता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो फ्रॉक फॉक्स की नाक पर चढ़कर बैठ जाती है, जिससे वो भी बेहोश हो जाती है। जिसके बाद डोरा और उसके साथी उस गेट के सामने आ जाते हैं। उस गेट के सामने काफी सारे लीवर्स थे और साथ ही एक जाल भी था। अगर गलती से भी कोई गलत लीवर दबाया तो ये सब जाल में फंस जाते। जमीन पर कुछ बॉक्सेस भी थे जिनमें सितारों की तरह कुछ चमक रहा था। 30 में से 4 बॉक्सेस के अंदर के सितारे मूनलाइट के बगैर भी चमक रहे थे। डोरा अब इन बॉक्सेस को ध्यान से देखती है, जिनमें एक पर ईगल, दूसरे पर फॉक्स, तीसरे पर स्नेक और चौथे पर जैक का इन सितारों की मदद से साइन बना हुआ था। वो समझ आती है कि उन्हें यहाँ बने इन जानवरों के स्टैचू वाले लीवर एक साथ दबाने हैं और ऐसा करते ही वो दरवाजा खुल जाता है। लेकिन अंदर जाने पर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता सिवाय कुछ रिफ्लेक्टर्स के। तो डोरा कुछ सोचने के बाद अपने मंकी को दीवार में बने सुराख में टॉर्च की लाइट लेकर बैठने को कहती है। टॉर्च की रोशनी और रिफ्लेक्टर्स का सही यूज करके ये एक और दरवाजा खोल देती हैं। लेकिन अचानक डोरा के दोस्त के हाथ से रिफ्लेक्टर्स गिरने की वजह से वो दरवाजा बंद ही होने वाला था कि ये सब तेजी से उसके अंदर चले जाते हैं और अब उनकी आंखों के सामने बहुत बड़ा गोल्डन मंकी स्टैचू था। एक्साइटमेंट में जब ये उसकी तरफ बढ़ते हैं तो गलती से एक स्विच पर इनका पांव आ जाता है, जिसकी वजह से सामने एक कांटों बड़ा दरवाजा खुल जाता है, जिससे टकराकर ये तकरीबन मरने ही वाले थे। लेकिन ये सब थे भी तो बहुत ही ज़हीन। सभी एक साथ बहुत बड़ा जंप लगाते हैं और इस मुश्किल को भी पार कर लेते हैं। और अब फाइनली इनके सामने कोई स्टैचू नहीं था, बल्कि फाइनली पैरापाटा का खजाना था। लेकिन वो खजाना इतना भी बड़ा नहीं था कि कोई उसके पीछे पागल हो जाए। यहाँ एक और गोल्डन मंकी स्टैचू था, जिसके नीचे लिखा हुआ था कि गॉड को किसी ऐसी चीज का तोहफा दो जो बहुत ही ज्यादा कीमती हो। इससे पहले कि वो इस पजल को सॉल्व कर पाते, वहाँ अलेक्जेंड्रो आ जाता है, जो कि आधे डोरा का शुक्रिया अदा करता है कि ये पजल्स मैं कभी भी सॉल्व ना कर पाता। और लास्ट वाला तो बहुत ही आसान है। वो वहाँ से एक सिक्का उठाता है और उन्हें स्टैचू के हाथ पर रख देता है। उससे लगता था कि सोना ही सबसे ज्यादा कीमती चीज है। उसके ऐसा करते ही वहाँ जमीन फटने लगती है। नीचे आग का लावा था और अलेक्जेंड्रो नीचे गिरने वाला था, लेकिन वो अपने आप को दीवार से लटक कर नीचे गिरने से बचा लेता है। तभी वहाँ एक और दरवाजा खुल जाता है, जिसके अंदर थे पैरापाटा के गार्ड्स। वो बाहर आते हैं। यहाँ वो बुरी औरत भी थी। उन्हीं गार्ड्स ने डोरा के मॉम डैड को भी पकड़ा हुआ था। वो बुरी औरत उनके सामने अचानक एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और पता चलता है कि ये गॉडेस यानी कि देवी है, जो कि इस खजाने की हिफाजत करती है। वो डोरा से कहती है कि अगर तुम सब बचना चाहते हो तो आखिरी पजल जल्दी से सॉल्व करो। तभी डोरा एक प्याले में पानी लेकर गोल्डन स्टैचू के हाथ में डाल देती है। डोरा के ऐसा करते ही वहाँ एक दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर से तेज रोशनी बाहर आ रही थी। डोरा देखती है कि उस दरवाजे के पीछे बहुत बड़ा गोल्डन मंकी स्टैचू है और ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। और पीछे से अलेक्जेंड्रो का फॉक्स उस छोटे मंकी स्टैचू को लेकर भागने लगता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ तूफान आ जाता है। जमीन हिलने लगती है, दीवारें टूटने लगती हैं, हर तरफ बर्बादी फैल जाती है। हर कोई अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है, जबकि पैरापाटा के गार्ड्स अलेक्जेंड्रो को पकड़ लेते हैं। लेकिन डोरा वहाँ से भागने की बजाय अपने मंकी के साथ उस फॉक्स के पीछे लग जाती है, जिसके हाथ में गोल्डन मंकी स्टैचू था। अपनी होशियारी और तेजी से वो उस स्टैचू को लेकर उसकी जगह पर वापस रख देती है। डोरा के ऐसा करते ही तूफान थम जाता है और अब सब पहले की तरह ठीक हो जाता है। और जिस दरवाजे से ये लोग अंदर आए थे, इन्हें पता ही नहीं चलता कि फिर से ये लोग उसी दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। सब लोग बिल्कुल ठीक थे और साथ ही साथ खुश भी थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन पूरा कर लिया था। उन्होंने आखिर पैरापाटा खजाने की खोज कर ही ली थी। और अब हम डोरा को अपने फ्रेंड्स के साथ डांस करता हुआ देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।